السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ٹاکسی لور کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ پلیز نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہربی کو وہ جب گھر سے چلے گئے تو عائشہ برتن چھوڑ کر دروازہ بند کرنے آ گئی۔ اسے بھی دروازہ کو لاک لگایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے پلٹ کر دروازہ کھلا تو شل رہ گئی۔ سامنے دستگیر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے ڈبے اور پھولوں کا گلدستہ تھا۔ یہ باس کی محبت ہے جو انہوں نے آپ کے لیے بھیجی ہے، اسے رکھ لیں گی تو اچھا لگے گا انہیں۔ عائشہ کو کچھ سمجھ نہ آیا وہ کیا جواب دے۔ یہ لوگ اسے پھر سے تنگ کرنے آ گئے۔ دستگیر نے اس کی ایکٹنگ دیکھنے پہ گلا صاف کرنے کی اداکاری کی تو عائشہ ہوش میں آئی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ سے، اپنے باس کے منہ پر مار دے جا کر۔ دستگیر کی آنکھیں ابل کر باہر گرنے کو ہو گئی۔ شکر ہے اس وقت شہیر سامنے نہیں تھا، ورنہ وہ یہ سن کر کیا کرتا اس کا اندازہ دستگیر کو اچھے سے تھا۔ دستگیر کچھ بولنے لگا کہ عائشہ نے دروازہ بند کر لیا اور اندر آ گئی۔ اندر آتے ہی لاؤنج میں رکھا فون چیخ اٹھا۔ عائشہ کے قدم رک گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کال کسی کی ہوگی۔ اس کا دماغ مزید خراب ہو گیا۔ وہ دانت پیستی ہوئی آگے بڑھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ عائشہ نے فوراً کان سے ریسیور دور کیا۔ وہ اس کی قربتیں محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ کان سے فون لگایا۔ میں نے پوچھا ہے آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ محبت کا۔ دیکھیں بکواس بس، دوسری جانب سے برہمی سے بولا تھا۔ عائشہ چپ ہو گئی۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے دوبارہ اس طرح بات نہیں کرو گی ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور جا کر وہ سب سامان لو۔ میں نہیں لوں گی، عائشہ نے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ یعنی میں آؤں گا تو میرے ہاتھوں سے لوگی؟ وہ دھمکی دے رہا تھا۔ عائشہ کو برا لگا۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ ہاں، تبھی کل میرے آنے کے بعد تمہیں رات میں ہی بخار ہو گیا تھا۔ اس بات پر عائشہ کو شوق لگا تھا۔ ایک پتہ نہیں اسے کیسے سب پتہ چل جاتا ہے۔ اب بتاؤ میں آ جاؤں یا تم لے رہی ہو سامان؟ جب عائشہ کا کچھ دیر جواب نہ آیا تو اس نے کہا۔ عائشہ مٹھی کا مکہ بنا چکی تھی۔ بس شہیر سامنے ہوتا تو شہیر سامنے نہیں تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ ہر بات پر ضد نہیں کرتے، جاؤ شاباش لو سب کچھ۔ مجھے ضدی بچے پسند نہیں ہیں۔ وہ کسی بہت بڑے شخص کی طرح لہجے کو نرم رکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا ضرور تھا پر اس میں نرمی ظاہر ہوتی تھی، جیسے وہ اس وقت کسی بچے سے بات کر رہا ہو۔ عائشہ کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ اول تو میں بچی نہیں ہوں، اور دوسری بات جب آپ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں تو کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ؟ عائشہ کے سوالوں پر لمحوں کی خاموشی رہی۔ پھر گھمگیر آواز میں بولا، تم میرے لیے وہ بچہ ہو جسے میں سدھارنا ہے۔ ابھی پیار سے کہہ رہا ہوں، پھر مجھے غصہ کرنا بھی آتا ہے، اس لیے مان جاؤ میں غصہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں فی الحال۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا، وہ اپنے گزشتہ رویے پر شرمندہ ہے۔ اشوک اس بات پر حیرت ہوئی۔ اگر یہ اس کی محبت ہے تو غصہ کیسا ہوگا؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اب جاؤ جلدی سے وہ سب لو اور اپنے موبائل کو آن کرو۔ میں نے دیکھنا ہے تمہیں، ورنہ میں آ جاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ عائشہ کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ اس نے ٹھک سے ریسیور رکھا اور پیر پر رکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے دستگیر کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ اسے ہنسی آ رہی تھی پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ فتنہ گھننا میسنا۔ عائشہ نے جھپٹ کے اس کے ہاتھ سے سامان لیا۔ بھاری ہے، میں اندر رکھ دیتا ہوں۔ اس نے دستگیر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، دستگیر نے شانے چکا کر کہا تو عائشہ نے پیر پٹک کے دروازہ بند کیا، جو دوسرے دروازے سے جڑتے ہی لاک ہو گیا۔ وہ ڈبے اور گلدستہ ابھی اندر ہی لائی تھی کہ فون بجنے لگا۔ عائشہ کا ماتھا گھوم گیا۔ اس نے صوفے پہ سب کچھ رکھا اور ریسیور اٹھایا۔ میں پہلے اس عذاب کو ٹھکانے لگا لوں، پھر آن کروں گی موبائل، نہیں مرتی میں اتنی سی دیر میں۔ وہ سچ ہو گئی تھی۔ شہر کی دوسری جانب لب بھیج گئے۔ ابھی تمہیں کہا ہے تم مجھ سے ایسے بات نہیں کرو گی، اب مجھے سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دیں گے تو میں ایسے ہی بولوں گی؟ میں سپر مین نہیں ہوں جو منٹوں میں سب کر لوں گی۔ وہ ایک ہی سانس میں سب بول گئی۔ شیر کے چہرے پر بے ساختہ مسکان آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، آرام سے سانس لو، پانی پیو، تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ 11ویں منٹ میں تمہارا موبائل آن ہو۔ وہ حکم دے کر کال کاٹ چکا تھا۔ عائشہ نے گندا سا منہ بنایا۔ وہ اس شخص کا کیا کرے؟ وہ سوچنے لگی۔ پھر اسے سامان یاد آیا تو تیزی سے اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لیے ایک ایک منٹ ضروری تھا۔ قبرستان میں دل دہلا دینے والی خاموشی تھی۔ تیرگی ہر طرف گہری سیاہی کی طرح پھیلی تھی۔ اس وقت قبرستان میں دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا،
سوائے اس کالے ہڈ والی لمبی برساتی نما کوٹ والے کے جس کا چہرہ ہڈ میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے بس لب ہلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ وہ ایک قبر کے سامنے کھڑا تھا جس پر ہولی کراس لگا تھا، اور ہولی کراس اس کے نیچے تختے پر مرنے والا کا نام درج تھا، مارگریٹ ہیلن۔ وہ شخص کھڑا اس تختے کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، میں آپ کے ساتھ ہونے والی ہر ناانصافی کا بدلہ لوں گا۔ ان لوگوں سے، انہوں نے آپ کے ساتھ جتنے ظلم کیے ہیں، میں ایک ایک کا بدلہ لوں گا۔ آپ کا شری آپ کے مجرموں کو کبھی معاف نہیں کرے گا ماما۔ اس کی آواز بھرا سی گئی تھی۔ خاموش قبر اس شخص کے سرد لہجے کی توجہ سے سن رہی تھی۔ آسمان پہ اب پھر سے کالے بادل چھانے لگے تھے، چاند ان میں کھو گیا تھا۔ اندھیرا رات مزید سیاہ ہو گئی تھی اس شخص کے دل کی طرح جو ابھی بھی قبر کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ سارے سامان کے ساتھ بڑی مشکل سے اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ اس نے سب کچھ بیڈ پر رکھا اور ماتھے پر آئے ندیدہ پسینے کو پوچھا، تھکا ہوا سانس لیا۔ دوپٹہ جو گلے میں جھول رہا تھا اس کے پلو سے ماتھا صاف کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دراز کھولی، وہاں سے موبائل نکالا، تبھی دل نے کہا، تم اس کی بات کیوں مان رہی ہو؟ وہ ایک پل کو رک کر سوچنے لگی، تاکہ وہ پاگل دندناتا وہ گھر نہ آ جائے۔ اس نے سوچ کر جھرجھری لی اور موبائل آن کر کے اس نے اپنے سامنے کیا ہی تھا کہ اس پر کال آنے لگی۔ وائس کال تھی۔ اس نے اوکے کی۔ ڈیٹا آن کر لو کنجوس، وہ محسوس لہجے میں بولا تھا۔ عائشہ کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ وہ کچھ کہتی کہ شہیر کال کاٹ چکا تھا۔ اس نے ڈیٹا آن کیا اور شہیر کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کی کال آ گئی تھی۔ اس نے کال اوکے کر کے موبائل کے کیمرے پر انگوٹھا رکھ لیا تھا۔ شہیر کے لب بھیج گئے، ناک کے نتنے پھول گئے۔ میں گھر آ جاتا ہوں، پھر تم سدھرو گی۔ عائشہ نے فوراً انگوٹھا اٹھایا۔ مجھے بات بات پر دھمکی مت دیا کرے، وہ خفقی سے بولی۔ شہیر نے دونوں بھویں اوپر کی۔ دوں گا، جتنا دل کرے گا اتنی دھمکیاں دوں گا، بتاؤ کیا کر لو گی؟ وہ چیلنج دینے والے انداز میں بولا تھا۔ عائشہ کو بھی غصہ آ گیا۔ میں آپ کو جان سے مار دوں گی، وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ موقع دیا تھا تو کیوں نہیں مارا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ عائشہ کچھ لمحے سے دیکھتی رہی۔ اس کی نگاہیں شہیر کی نیلی جادو کرتی آنکھوں پر تھی۔ وہ ان میں دیکھتی تو اس کے اعصاب شل ہونے لگتے تھے، دماغ جیسے دھواں کی زد میں آ جاتا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد ہر چیز کو بھولنے لگتی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، وہ دوسری جانب سے دوبارہ بولا تو عائشہ نے ان نیلی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ہٹائی۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا تو اب میں فون بند کر دوں؟ شہیر نے نام سر ہلایا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے لاؤنج میں صوفے پر دراز تھا۔ اس نے جب موبائل کچھ دور کر کے صوفے کی پشت پر موبائل والا ہاتھ رکھا تو عائشہ کی نظر اس کے بغیر شرٹ والے وجود پر پڑی تو اس نے پورے کا پورا رخ گھما لیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اشوک کو اس کی حرکت بری لگی تھی، جبکہ شہیر کچھ حیران ہوا۔ اسے وقت لگا سمجھنے پر۔ جب وہ سمجھ گیا تو بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ تم مجھ سے شرما رہی ہو؟ عائشہ اس وقت اسے دیکھتی تو اسے معلوم ہوتا ہر وقت غصہ کرنے والا انسان جب مسکراتا ہے تو کتنا خوبرو لگتا ہے، پر عائشہ نے یہ موقع گوا دیا تھا۔ میں کال کاٹ دوں گی، عائشہ نے چہرہ دوسری جانب ہی رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ رکو۔ وہ مسکراتا ہوا سر جھٹک کر کھڑا ہوا۔ موبائل کو کانچ کے میز پر رکھ کر اس نے دوسرے سنگل صوفے پر اپنی بنیان نما شرٹ اٹھائی اور اسے بازوئے میں پھنسا کر وہ اپنے کسرتی جسم کو چھپا چکا تھا۔ شہیر نے دوبارہ موبائل اٹھایا اور صوفے پر لیٹ کر دوبارہ ہاتھ وہی صوفے کی پشت پر رکھا اور بولا، اب دیکھو میری طرف۔ وہ اتنے پیار سے بولا تھا کہ عائشہ کے دل کی دھڑکنیں بے ساختہ تیز ہو گئی۔ وہ اس طرح بولتا رہا تو عائشہ کہاں تک بھاگے گی؟ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس اچھا ہوتا ہے، ایسا کسی نے کہا تھا، اور مجھے یہ بات 100% سچ لگی۔ عائشہ نے بھی دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ گردن گھما کے بند آنکھوں والا چہرہ موبائل کی سکرین کی طرف کیا، پھر دھیرے سے ایک آنکھ کھولی۔ شہر اس کی ان حرکتوں سے محظوظ ہو رہا تھا، پر اب وہ مسکرا نہیں رہا تھا، وہ بس توجہ سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو شہیر کی محبت کو اور ہوا دے رہی تھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جب عائشہ کو تسلی ہو گئی کہ وہ اب شرٹ میں ہے تو وہ برہمی سے بولی، تمہیں آ گئی ہے نا، بس کافی ہے، اب بس کرو۔ وہ بھی عائشہ ہی کے انداز میں بولا۔ عائشہ نے سر جھٹک دیا۔ دیکھ لیا مجھے، اب کر دوں فون بند؟ اسے اپنا سوال پھر سے یاد آ گیا۔ شہیر نے سر نہ میں ہلایا۔ وجہ؟ وہ تعجب سے بولی، میرا دل نہیں بھرا۔ عائشہ کی بولتی سی بند ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکائی، پھر وہ محبت سے بول رہا تھا، میں نے کام کرنا ہے۔ وہ اب فون بند کر دینا چاہتی تھی۔ کیا کام؟ پر شہیر باتیں کرنا چاہتا تھا۔ برتن دھونے ہیں، اسے جو یاد تھا کہہ دیا۔ وہ اب پھر سے شہیر کی چور نظروں کو دیکھنے لگی تھی جس کے چہرے پر ناز پسندگی تھی۔ مت کیا کرو یہ، وہ ایسے بولا جیسے عائشہ کے بس میں ہو
तो इनकार, वो तो खुद जान छुड़ाना चाहती थी। मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है, वरना मेरी अम्मी अम्मी घर से निकाल देंगी। एक ये बर्तनों का मौजू था जिस पर अपने रोने हर किसी के सामने रोने बैठ जाती थी। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपने साथ ले आऊंगा। यही तुम सिर्फ बर्तन तोड़ना, गंदे करना, जो दिल करे वो सब करना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। वो इसे बहुत गहरी नजरों से देखते हुए कह रहा था। आयशा फिर से खामोश हो गई। ये शख्स कितनी खूबसूरत बातें करता था और आयशा को इन्हीं बातों से खौफ आता था। मोहब्बत की बातों से दिल बागी होता है और इसे अपना दिल बागी नहीं करना था। मैं कॉल बंद कर दूं? आयशा के लहजे में अब मिन्नत थी। शहीर के चेहरे पर गुस्सा फैलने लगा। नहीं करनी अभी कॉल बंद। मुझे बताओ, वो तोहफे तुम्हें पसंद आए? वो अपने भेजे तोहफों का पूछने लगा था। नहीं, अभी खोल कर नहीं देखे। वो बेनियाजी से बोली। वो जानती थी अब शहीर से खोलने का कहेगा और आयशा नखरे करेगी, फिर वो इसकी मिन्नतें करेगा। हाय, कितना मजा आएगा। और यहाँ हमारी आयशा बिगड़ने लगी है। खोला ही नहीं अभी। शहीर ने हुक्म दिया। आयशा ने जमा ही ली। मैं सुबह देखूंगी। मैं आ जाऊं खोलने? आयशा ने इसे नाराजगी से देखा, फिर भवेश मुस्कुराई। आप अब? शहीर ने बात काटी। खोलो शाबाश, वो तौकीर से बोला था। आयशा ने मोबाइल पटकने वाले अंदाज में एक तरफ रखा और डिब्बे खोलने लगी। पहला डिब्बा खोला और बेड पर उल्टाया तो इसमें बहुत सारी चॉकलेट बेड पर गिरती चली गई। आयशा ने इतनी सारी चॉकलेट बस टीवी में ही देखी थी। इसका बचपन का ख्वाब था कि वो ऐसी दुनिया में चली जाए जहाँ बस हर तरफ चॉकलेट्स ही हों, और आज इसे यही लग रहा था। वो इसी दुनिया में आ गई है जहाँ ढेर सारी चॉकलेट इसके सामने पड़ी हैं। इसका दिल कर रहा था वो इनसे नजरें ना हटाए, पर अभी दूसरा डब्बा भी खोला था। अब वो मुतजस्सिस थी कि दूसरे डिब्बे में क्या होगा, क्योंकि वो पहले डिब्बे से बड़ा था। इस पे गुलदस्ता रखा था। आयशा ने फूलों का गुलदस्ता उठाकर एक तरफ रखा और डिब्बा खोलने लगी। डिब्बा खोले तो इसकी आंखें इस्तजाब से फैल गई। इसमें एक बहुत बड़ा 8 साल के बच्चे के कद जितना टेडी बियर था, जिसका रंग हल्का गुलाबी और सफेद था, जो मुस्कुराकर आयशा को देख रहा था। इसने इसे उठाकर अपने सामने रखा। वो इसे बस देखते रहना चाहती थी, पर शहीर का ख्याल आने से इसने मोबाइल हटाया। बताओ कैसे लगे तुम्हें तोहफे? वो अब तारीफ सुनना चाहता था और आयशा अब समझ चुकी थी वो क्यों कहे कि इसने ये सब बस टीवी और दुकानों में ही देख रखे हैं। इसे अपनी अना का पास रखते हुए शान उचका। ठीक है, पर आपको ये सब नहीं भेजने चाहिए थे। बड़ी महारत से झूठ बोल रही थी। तुम्हें पसंद नहीं आए? शहीन ने इसके चेहरे को बखौर देखकर पूछा। हाँ, नहीं आए पसंद, वो ढिठाई से बोली। मैं अभी आता हूँ तुम्हें लेने, तुम अपनी पसंद से जो चाहे ले लेना। वो कहकर सोफे से खड़ा होने लगा। आयशा का दिल किया वो नजर किसी दीवार पर दे मरे। मतलब ये शख्स हर वक्त इसके घर आने के लिए तैयार बैठा होता है। नहीं, अच्छे हैं, आने की जरूरत नहीं है। शहीद ने भवेश खाकर इसे देखा। सच कह रही हो? आयशा ने सर जरूर से हिलाया। लाशौरी तौर पर आयशा ने इसका गुलाबी भालू के गले में बाहें डाली हुई थी। एक दिन मैं तुम्हें ऐसे ही हक करूंगा क्योंकि तुम मेरा टेडी बियर हो। इसकी बात पर आयशा ने पहले बाहों में मौजूद भालू को देखा जो इसके सीने से लगा था, और फिर इसके बाद इसमें शहीर से नजरें मिलाने की हिम्मत न रही। इसे झनक कर कॉल काट दी और भालू को खुद से फौरन दूर किया। दिल की रफ्तार एकदम ही बढ़ गई थी। इसे इस शख्स की इन बेसाख्ता कही बातों और गहरी बोलती नजरों ने से पता नहीं क्या होता था, पर जो भी होता था वो सब ठीक नहीं है। इसे इसे सबसे बचना था। वो शहीर मलिक को कभी अपने करीब आने नहीं देगी, इसे ये सोचा था। इसे अपना इरादा कमजोर लगा, पर आयशा ने इसे नजरें चुराई और बेड पर फैली चीजों को समेटने लगी। सब कुछ समेट कर इसने अलमारी में रखा, बस गुलाबी भालू को बेड पर पड़ा रहने दिया। आयशा का दिल नहीं कर रहा था वो इसे अपनी नजरों से दूर करे। वो इसे बेड पे एहतियात से रखकर नीचे बर्तन धोने आ गई। वो अब किचन में अकेली होकर भी अकेली नहीं थी। इसके साथ शहीर की बातें थी जिन्हें सोच सोच कर वो मुस्कुरा रही थी। इसे चाहे जाने वाली मोहब्बत पसंद आने लगी थी। हर किसी को ऐसा शख्स चाहिए होता है जो इसे टूट कर चाहे, और आयशा को वो मिल गया था। पर आयशा इसकी मोहब्बत और दीवानगी अभी जानती नहीं थी। जब जानने लगेगी तो इसे शहीर से नफरत हो जाएगी। अगली सुबह शहीर पर उजली उजली थी। आयशा जब सो के उठी तो वो बहुत खुश थी। इसने उठने से अपने साथ पड़े भालू को देखा जो मुस्कुरा रहा था। आयशा भी इसे देखकर मुस्कुरा दी। इससे लगा जैसे वो सब ख्वाब था, पर नहीं, इसे गलत लग रहा था। फिर इसके बाद वो पूरे दिल से यूनी के लिए तैयार हुई। बुखार उड़नछू हो गया था। कुछ दवाई का कमाल था और कुछ मोहब्बत का। शहीर का डर भी एक पल को दिल से निकल गया था। आयशा ने एप्पल ग्रीन टखनों तक अता फ्रॉक पहना था जिसके साथ चूड़ीदार पजामा था। गले में सफेद मोतियों की लड़ी को डालकर इसने अपने काले लंबे बाल खोलकर इन्हें कमर पर फैलाया था। बाल स्टेप्स में कटे हुए थे और नीचे से घुंघराले थे।
اس نے گلے میں سفید نیٹ کا دوپٹہ ڈالا اور گالوں پر ہلکا سا بلشر اور لبوں پر گلابی لپ گلوز لگائی۔ غزال نما بڑی آنکھوں پر لائنر کی دھار پھیر کر اس نے جلمن پھلکوں پر مسکارا لگایا اور آنکھوں پر سمو کی ٹچ دینے کے بعد اس نے اپنی کلائیوں میں چوڑیاں ڈال کر خود کو شیشے میں دیکھا اور خود کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کس کے لیے اتنا تیار ہوئی تھی یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ دل میں جس کا نام آیا اسے اس کا سن کر بھی انسنا کرتی۔ وہ پیروں میں ہیلز پہن کر اپنا پرس اور کتابیں اٹھا کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ امی نے اس کی تیاری دیکھ کر پوچھ لیا، یونی میں کوئی فنکشن ہے؟ عائشہ سٹ پٹا سی گئی۔ نہیں تو کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تم اتنا تیار ہوئی ہو نا اس لیے۔ امی ناشتہ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی پر عائشہ کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اور کون سی چوری جو وہ ابھی ماننے کو خود بھی تیار نہیں تھی؟ اس نے جلدی سے بہانہ گڑا، وہ میری دوست کی سالگرہ ہے اس لیے تیار ہو کر جا رہی ہوں۔ اس نے کہہ کر نظریں چرائی تھی۔ امی نے سر ہلایا۔ اس کے بعد اس نے بڑے براہ نام ناشتہ کیا اور ابو کے ساتھ چنی چلی گئی۔ سبز گھاس پہ دھوپ کی کرنیں بکھری دکھائی دیتی تھی۔ ان پر بیٹھے شبنم کے دم توڑتے قطرے محبت سے عائشہ کو دیکھ رہے تھے جو ایک کاندھے پر دوپٹہ ڈالے مسکراتی ہوئی چل رہی تھی۔ اونچی ہیل سے اس کا دراز قد مزید دراز لگتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ بہت سو نے اس کی رک کر تعریف کی اور وہ بس شرمائی شرمائی مسکراہٹ سے سب کو شکریہ کہتی اپنے ڈپارٹمنٹ میں آ گئی۔ اسے حیرت ہوئی وہاں انابیہ ابھی نہیں آئی تھی۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر کتابیں سامنے رکھی اور اپنا موبائل نکال کر انابیہ کو کال کی۔ کال جا رہی تھی پر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ وہ مزید حیرانی میں مبتلا ہو گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ انابیہ نے اسے بغیر بتائے چھٹی کی ہو۔ پھر آج عائشہ کو نہ جانے کیوں وہ اپنے اندر کسی خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے آج کچھ برا ہوگا۔ اس نے ایک دو بار نابیہ کو کال کی پر جب اس نے نہ اٹھائی تو عائشہ نے موبائل دوبارہ اپنے پرس میں رکھ کر کتاب کھول لی۔ تبھی اس نے نناستہ سر اٹھایا۔ دور کلاس کے دروازے کے پاس نایاب کھڑی تھی۔ عائشہ اسے دیکھ کر مسکرائی پر نایاب اسے بغیر پلک جھپکے دیکھتی رہی۔ اس نے کچھ توجہ سے نایاب کو دیکھا تو عائشہ کی مسکراہٹ مانند پڑ گئی۔ نایاب کی آنکھوں میں اس کے لیے اس وقت صاف ناپسندگی دکھائی دیتی تھی۔ وہ چپتی ہوئی نظروں سے تقریباً عائشہ کو ہی گھور رہی تھی۔ عائشہ نے اسے نظریں ہٹا لی۔ اسے نایاب سے کچھ اچھی وائبس نہیں آتی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ انابیہ کہاں رہ گئی۔ اس نے نایاب کی نفرت بھری نگاہوں کو سر سے جھٹکتے لیے دوبارہ موبائل نکالا اور انابیہ کو کال کی۔ اب کی بار انابیہ نے کال اٹھا لی تھی۔ کہاں ہو تم؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ وہ جھوٹتے ہی بولی تھی۔ انابیہ کی طرف کچھ دیر خاموشی رہی پھر وہ بولی تو اس کی آواز میں عجیب سا تھا، میں ابھی تھوڑی دیر تک آ رہی ہوں عائشہ، میں بہت بری طرح پھنس گئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عائشہ کو محسوس ہوا جیسے انابیہ کی آواز نم ہو گئی ہے۔ ہوا کیا ہے انابیہ؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ عائشہ نے فکر سے پوچھا۔ گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے پر میری زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو مجھے ٹھیک سے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ عائشہ کی پریشانی پل پل بڑھ رہی تھی۔ میں آ کر بتاتی ہوں، مجھے ایک بار یونی آ جانے دو، انابیہ نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ عائشہ نے موبائل اپنی گود میں ہی رکھ لیا۔ اس کا دماغ بری طرح سے منتشر ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں انابیہ کو کیا مسئلہ تھا جو وہ ایسے بول رہی تھی۔ عائشہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دبایا اور دوبارہ سامنے دیکھا تو نہیں اب ویسے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کو اب اس کے یوں دیکھنے سے خوف آنے لگا تھا۔ اس نے اپنا رخ اس کی طرف سے موڑ لیا تھا اور انابیہ کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جب انابیہ آئی تو عائشہ نے بے ساختہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اس کے گلے لگی۔ کیسی ہو تم؟ سب ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے اسے جدا ہو کر پوچھا۔ نہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی۔ تبھی نایاب اس کے قریب آئی اور انابیہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مجھ سے تم 100 میل کے فاصلے پر ہو گھٹیا لڑکی۔ اس کے لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ عائشہ انابیہ کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ آج تک انابیہ کو اس نے اتنے غصے اور نفرت سے کبھی کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بہت نرم خو لڑکی تھی، ہر ایک سے محبت سے بات کرنے والی۔ نایاب کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے ملال بھری نظروں سے انابیہ کو دیکھا۔ تم بہت غلط کر رہی ہو، تم پچھتاؤ گی۔ میں تم سے یا تمہارے بھائی سے ڈرتی نہیں ہوں، تم دونوں بس ذہنی مریض ہو۔ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہو رہی ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ انابیہ نے کہہ کر عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور خود ہی وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ نے پلٹ کر نایاب کو دیکھا۔ وہ اپنی آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب شعلے دکھائی دیتے تھے۔ وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ عائشہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے انابیہ کو روکا اور دونوں ڈپارٹمنٹ سے باہر آ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے انابیہ؟ تم اس طرح سے کیوں بات کر رہی تھی؟ عائشہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ میرے ساتھ کینٹین چلو، میں وہاں بیٹھ کر تمہیں سب بتاتی ہوں۔ عائشہ نے سمجھانے والے انداز میں سر ہلایا۔
कुछ देर बाद वो दोनों कैंटीन में आमने सामने बैठी थी। अनाबिया के चेहरे पर जबरदस्त किस्म की परेशानी थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो बात कहाँ से शुरू करे। इसे कुछ देर पहलू बदले गहरे गहरे सांस लिए और फिर कहना शुरू किया। अनाबिया जैसे जैसे अपनी बात आगे बढ़ रही थी, आयशा की आंखें उबलकर बाहर गिरने को हो रही थी। आयशा के लिए ये सब नया था। अनाबिया ऐसे मसले में फंस गई थी, इसने सोचा नहीं था। शहर में बिखरी किरणें सुनहरी थी। सड़क के किनारे खड़ी काली गाड़ी धूप में जल रही थी। ड्राइविंग सीट पर दस्तगीर काले पैंट कोट में कानों में एयरफोन लगाए बैठा सड़क के पार बिल्कुल सामने बने शॉपिंग मॉल को देख रहा था। तभी इसके पास एक दूसरा गार्ड आकर बोला, सर, मैंने टायर की हवा निकाल दी है। दस्तगीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दर आई। इसने सर हिलाया दिया था। वो वैसे ही सामने देख रहा था। गार्ड वहां से जा चुका था। कुछ देर बाद शॉपिंग मॉल में जिया हाथों में बैग्स उठाए बाहर निकली तो दस्तगीर ने गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स कर ली थी। इसकी नजरें जिया पर ही थी। वो अपनी गाड़ी के पास आ गई थी जहां ड्राइवर परेशान सा खड़ा था। वो सर नामे हिलाकर कुछ कह रहा था और जिया गुस्से से लाल होते चेहरे से इसे झड़क रही थी। फिर इसने बैग्स ड्राइवर को पकड़ाया और मोबाइल पे किसी का नंबर मिलाने लगी। और यही वक्त था हीरो की एंट्री का। दस्तगीर की गाड़ी संस करके जिया के सामने रुकी। शीशा नीचे हुआ। आप यहाँ, सब ठीक है ना? वो कहता हुआ गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। चेहरे पर फिक्र थी, फिर खुद ही इसने गाड़ी के टायर को देखा। ओह, ये कैसे हुआ? जिया जो किसी का नंबर मिला रही थी, दस्तगीर के पास आकर गाड़ी रोकने और फिर एक के बाद एक सवाल पे इसे देखने लगी थी। वो पहचान गई थी, ये शहर का सबसे खास गार्ड था, शहर का राइट हैंड। पता नहीं, मैं तो अंदर थी, ये बेवकूफ यहाँ खड़ा था। इसे पता ही नहीं चला कब गाड़ी का टायर पंचर हो गया। जिया गुस्से से होते लाल नाक से कह रही थी। दस्तगीर ने एक नज़र इसकी तवज्जो से देखा। वो हमेशा जैसे खूबसूरत दिखाई दे रही थी या शायद आज वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वजूद पर सॉफ्ट टॉप और टखनों से ऊंची चिस्त जीन्स, बाल इसके खुले कमर पर बिखरे थे। चेहरे पर बरहमी के साथ हल्का मेकअप था। दस्तगीर का दिल नहीं था इस पर से नजर हटाने का, पर इसने दिल को समझाया और इस पर से नजरें हटा ली। मैं छोड़ दूं आपको? जेस की ऑफर पर चौंकी। तुम्हारे बॉस तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, वो तल्खी से बोली और दस्तगीर हंस दिया। नहीं बॉस, मेरे जाती मामलात में हम दाखलत नहीं करते। जी हाँ की भवें आपस में मिल गई। पर मैं तो आपका जाती मामला नहीं हूँ, इसने बात पर जोर देकर कहा। दस्तगीर नॉर्मल अंदाज में से देखता रहा। हल्की सी मुस्कान इसके चेहरे पर थी। आप मेरा जाती मामला है जो मेरे दिल से उलझा है, ये ना सुलझा तो दिल बंद हो जाएगा। वो ये कहना चाहता था पर फिर सर झटक कर बोला, तो बस इतना ही, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इन सब में बहुत वक्त लग जाएगा, इसने टायर को देखते हुए कहा। तो जिया सोचने पर मजबूर हो गई। कहता वो ठीक रहा था, घर से दूसरी गाड़ी आने में भी वक्त लग जाना था, इसीलिए वो दस्तगीर की बात मान गई। दस्तगीर ने आगे बढ़कर फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। जब जिया वहां बैठी तो इसने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी चला ली। दस्तगीर की नजर सड़क पर ना थी। वो चोर नजरों से इस मोमी गुड़िया को देख रहा था जिसे वो बस देख सकता था पर कभी अपना नहीं सकता था। यूनी की कैंटीन में आयशा को लगा जैसे हर तरफ खामोशी छा गई है। बाहर आसमान पर जलता सूरज बुझ गया है। इसे अपने कानों में साई साई होती सुनाई दे रही थी। वो इन सबको ज्यादा नहीं जानती थी, बस टीवी और नेट पर खबरें सुनी थी। इस मुतालिक कभी सोचा नहीं था कि हकीकी जिंदगी में भी इसके सामने कोई ऐसा मसला मुंह खोले खड़ा होगा। ये कितनी बेइज्जती वाली बात है। अनाबिया का परेशान होना बचा था। अगर नायाब ने इसके घर आके ये सब कह दिया तो? आयशा को समझ नहीं आ रही थी वो अपने सामने रोती हुई अनाबिया को क्या कहकर तसल्ली दे। पर तसल्ली तो देनी ही थी और इस मसले का हल भी निकालना था। देखो, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम इससे दूर रहना। अनाबिया ने आंखें पोंछते हुए आयशा को देखा। मुझे पता है वो ऐसी लड़की है, तो मैं इससे कभी बात नहीं करती। वो मुझे कहती है कि मैं इसके भाई से शादी कर लूं। अगर मैंने ऐसा ना किया तो इसका भाई मुझे उठवा लेगा। आयशा के इस बात पर गुस्सा आया। ऐसे कैसे उठवा लेगा? मुंह ना तोड़ देंगे हम इसके भाई का। और तुम अब रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। ज्यादा तंग करेगा ये नया तो तुम मुझे बताना, हम इसकी पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। अनाबिया के दुख में कमी ना आई। मसला तो सारा ये है कि मैं किसी को बताऊं भी तो क्या बताऊं। इसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। आयशा अपनी जगह से खड़ी और इसने गिर बाहें फैलाई। अच्छा बस करो, कुछ भी नहीं होता। तुमने नयाब को अब मुकम्मल नजरअंदाज करना है। अगर वह यूनी में भी तुम्हारे करीब आए तो तुमने सीधी इसकी कंप्लेंट करनी है। अब चुप हो जाओ। आयशा ने इसके आंसू साफ किए और इसका हाथ पकड़ कर उठाया। चलो बस घर चलते हैं, खड़ी हो जाओ। अनाबिया ढले असाब में खड़ी हो गई। तुम्हें कोई लेने आएगा? आयशा ने पूछा। अनाबिया ने एक गीली सांस अंदर खींची, चेहरा रुमाल से साफ किया। नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। वो दोनों अभी कैंटीन से निकल रही थी।
रोबश पर चलती हुई वो दोनों दाखिली दरवाजा अबूर कर चुकी थी तो आयशा ने अबू को कॉल करके बुला लिया था। इसका दिल हर चीज से अचाट हो गया था। लेक्चर लेने का भी इन दोनों का कोई दिल नहीं था। नाबिया का जवाब सुनकर आयशा ने कहा, मैं छोड़ दूंगी तुम्हें, अबू आने वाले हैं। नाबिया ने सर नामे हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ आयशा, तुम परेशान ना हो। देखो सामने ही टैक्सी खड़ी है, मैं चली जाऊंगी। आयशा ने इसके दोनों हाथ पकड़े। पक्की बात है ना, तुम ठीक हो ना आप? अनाबिया ने जबरदस्ती सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। फिर वो टैक्सी की जानिब बढ़ गई। आयशा को भी इसके अब्बू लेने आ गए थे। वो दोनों जब वहां से चली गई तो यूनी के गेट से नया बाहर निकली। इसके तासुरात पथरीले थे। इसने आयशा की गाड़ी को नफरत से देखा और अपना मोबाइल निकाला। नाबिया ने सब कुछ अपनी दोस्त को बता दिया था। भाई, ये दोनों मुझे पूरी यूनी में जलील कर देंगी, मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। वो फिर से रोने लगी थी। दूसरी जानिब में जो शख्स कुछ कह रहा था पर नायाब ने नामे सर हिलाने जा रही थी। यूनी इसे खौफ से देख रही थी। आयशा का दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। वो गाड़ी में बैठी हुई भी वही सब सोच रही थी जो अनाबिया ने इसे कैंटीन में बताया था। इसकी नजरें बाहर भागते दरख्तों पर थी, पर दिमाग में अनाबिया की आवाज़ बाज़गुश्त कर रही थी। नायाब और तंजीम दो बहन भाई हैं। इनके वालिदैन का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। ये दोनों अपने मामू के घर में रहते थे। वहाँ ममानियों का रवैया इनसे बहुत बुरा था। ये दोनों बहुत मुश्किल वक्त काट कर बड़े हुए। तंजीम ने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। हर मसला मेहनत की कमाई से हल नहीं होता, इसीलिए इसने काम के साथ साथ अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर चोरियां करना शुरू कर दी। इसकी पहली चोरी इसके मामू के घर ही थी। आयशा को अब्बू ने घर के दरवाजे पर उतारा और इसका चेहरा देखकर पूछा, सब ठीक है? वो गायब दिमाग से बस सर हिलाकर पलट गई थी। अब्बू ने इसे ताज्जुब से देखा, फिर इन्हें दुकान से देर हो रही थी इसलिए वहां से चले गए। वो भी अंदर दाखिल हो गई थी और इस चोरी का मामू को बहुत जल्द पता लग गया था। उन्होंने तंजीम को बहुत मारपीट कर घर से निकाल दिया। नायाब इस वक्त 15 की थी। वो बहुत रोई थी। इन दिनों इसकी ममानी की एक बहन इनके घर रहने आई हुई थी। वो नायाब के बहुत करीब रहने की कोशिश करती थी। नायाब को कभी कभी इससे उलझन होती, पर फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे वो अपनी हमदर्द लगने लगी, क्योंकि वो वाहिद शख्स था इस घर में जो इससे मोहब्बत से बात करता था। नायाब तंजीम के घर से निकाल दिए जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी। वो अकेली स्टोर में सोया करती। पहले वह इसका भाई तंजीम भी होता था, पर अब वो अंधेरे से डरती पूरी रात जाकर गुजारती थी। एक दिन वो रात में स्टोर में बैठी रो रही थी। जब स्टोर का दरवाज़ा बजा, वो डर गई। फिर आवाज़ पहचानने पे वो खड़ी हुई और दरवाज़ा खोलकर सामने देखा। इसकी ममानी की बहन खड़ी थी जो इसकी उम्र से बड़ी थी। इसकी मोहब्बत और शफकत नायाब का हर दुख दूर कर दिया करती थी। नायाब इसे गले लग गई। इस औरत ने भी अपनी बाहें इसके गिर्द हाइल कर ली थी। फिर इसने नायाब का माथा चूमा और पलटकर स्टोर का दरवाज़ा बंद किया। स्टोर में नींद तरीके से उठा चुकी थी। आयशा हवाओं में चलती अपने कमरे में आ गई थी। इसने आकर दरवाज़ा बंद किया और गले का दुपट्टा निकालकर बेड पर किताबों और पर्स समेत रख दिया और खुद बेड पर बैठ गई। इसके दिमाग में अभी भी नायाब की कहानी जो अनाबिया ने सुनाई थी गूंज रही थी। कमरे की खामोशी, सफ़ेद जलता बल्ब और खिड़की से झांकती धूप की किरणें तवज्जो से सुन रही थी। वो औरत नायाब के गाल को चूमकर कह रही थी, ये लोग बहुत बुरे हैं, खासकर तुम्हारे मामू। वो तुम्हें मारते पीटते हैं, तुम पर जुल्म करते हैं। वो अपने मर्द होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि मुझे दुनिया का कोई मर्द पसंद नहीं है। मुझे इनसे डर महसूस होता है। वो औरत रुकी, नायाब को देखा। क्या तुम्हें भी मर्दों से डर लगता है? इसके सवाल पर नायाब ने बगैर तामुल सर हिला दिया। वो औरत मुस्कुरा दी। इसने नायाब को अपने सीने से लगा लिया। हाँ, ये मर्द बहुत बुरे होते हैं। ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकते। ये हमें कभी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। ये बस हमें मारते पीटते हैं। इसने नायाब को खुद से जुदा करके अपने सामने किया। जो मोहब्बत एक औरत को औरत से मिल सकती है, वो ये मर्द कभी नहीं दे सकते। नया भी इसकी बात को बहुत तवज्जो से सुन रही थी। और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी हमेशा। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो ना? नया आपको वक्त लगा जवाब देने में। नीम तारीकी इस औरत के चेहरे पे रक्सा थी। वो मुस्कुराकर पूछ रही थी। नयाब ने एक लम्हे को अपनी आंखें बंद की। वो सब कुछ सोचा जो आज तक इसके साथ हुआ था, जो कुछ इसके मामू ने इसके साथ किया था। वो तकलीफ इसकी आंखों के सामने आ गई और इसकी रूह लरस गई। इसने झटके से आंखें खोली। हाँ, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे भी हमेशा आपके साथ रहना है। इस औरत की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। वो अब नायाब की गर्दन पे अपने होंठ रख रही थी। नायाब इसके लम्स में पहली बार आशना नहीं हो रही थी। ये लम्स अब इसके लिए पुराना हो चुका था। वो इस लम्स की आदी भी हो चुकी थी। आयशा के चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। वो सब तसव्वुर करना ही इसके हवास शैल कर रहा था। इस सोचकर ही घिन आ रही थी।
नायाब और इस औरत की मोहब्बत तब तक चली जब तक नायाब अपने मामू के साथ रही। फिर एक दिन इसकी मुमानी की बहन वहां से चली गई। नायाब बहुत रोई, वो औरत भी बहुत रोई, पर इनके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। नायाब के लिए इसका चले जाना किसी सदमे से कम नहीं था। नायाब के लिए इसके बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया था। तंजीम एक दिन वापस आया और नायाब को लड़ झगड़ कर अपने साथ ले आया। वो एक छोटे खस्ताहाल मकान में रहता था। नशे की आदत और चोरी की लत इसकी रगों में बस गई थी। पर वक्त के साथ साथ इनके घर के हालात बेहतर हो गए और नायाब भी बड़ी हो गई। इसका भाई इससे बहुत मोहब्बत करता था। वो नायाब पर बहुत तवज्जो देता था। इसके लिए नायाब की बात बहुत मोतबर होती थी। नायाब इस घर में आने वाले वक्त गुजर जाने के बाद भी अपने अंदर का खालीपन ना मिटा सकी। इसे मर्दों से अभी भी इतना ही खौफ आता था। वो इस वक्त कॉलेज जाती थी। वहाँ इसकी दोस्त से एक दूसरी लड़की हुई जिसके करीब आने में नायाब ने बहुत जल्द की और इसे खो दिया। इस दिन इसने पहली बार अपनी नस काटी थी। वो इस लड़की के बगैर मर जाना चाहती थी। वो बच तो गई थी पर तंजीम के लिए ये सब बहुत अजीब था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी बहन ने एक लड़की के छोड़ जाने पे इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। बहुत सोचने के बाद इसने नायाब से बात करने का फैसला किया और तब तक नायाब भी अच्छी तरह समझ चुकी थी कि वो क्या है और इसे कहाँ से मोहब्बत चाहिए। कमरे में बेड पे बैठी आयशा को लगा जैसे इसका दम घुट रहा है। वो उठकर खिड़की के पास आ गई थी। नायाब अपने भाई के सामने बैठी इसे बता रही थी कि वो आम लड़कियों से मुख्तलिफ है। इसे अपनी जैसी ही लड़कियों से मोहब्बत होती है। वो लड़कों को पसंद नहीं करती। वो एक लेस्बियन है। इसका भाई इतना पढ़ा लिखा तो ना था, पर जो नायाब ने कहा जिसमें नायाब खुश है वो इसी में खुश रहेगा। इसने नायाब को अपने सीने से लगाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नायाब की हमजिन्स परस्ती को यहाँ से हवा मिली थी। फिर कॉलेज में वो लड़कियों से दोस्ती करती, उन्हें अपने घर बुलाती और इन्हें वही सब करने पर मजबूर करती जो वो करना चाहती थी। कभी इन्हें मोहब्बत की कसम देती तो कभी इन पे किए जाने वाले एहसान को वो जताती। कुछ लड़कियां इसके साथ खुश भी रहती थी। इन्हें नायाब के दिए जाने वाले महंगे तोहफे और कुर्बत वक्ती तौर पर अच्छी लगती थी, पर ये ताल्लुक एक हद तक साथ रहते थे। ये लड़कियां भी ऐसी ही फीमेल से ताल्लुक रखती थी जहां पर मर्दों का होल्ड हद से ज्यादा होता था, जहां इन्हें आज़ादी कम मिलती थी। वो खुली खिड़की से बाहर देख रही थी। इसकी सांस गहरे थे। आयशा अपने जहन से वो सब नहीं निकाल पा रही थी। नायाब जब यूनी आने लगी तो इसकी मुलाकात अनाबिया से हुई। अनाबिया इसे देखते ही पसंद आ गई थी। वो खुद से ही अनाबिया के करीब करीब रहने लगी। अनाबिया इन लोगों में से थी जो किसी की तवज्जो को नजरअंदाज करके इन्हें दुख नहीं देते। वो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने वाली लड़की थी। नायाब ने अनाबिया का नंबर ले लिया। वो दिन रात इसे मैसेज करती, इससे यूनी में मिलती, कभी इसके घर आ जाती। वो अनाबिया को भी अपने घर आने का कहती, पर वो सहूलत से इनकार कर देती। नायाब इसे दूसरी लड़कियों के साथ देखती तो इससे नाराज हो जाती। वक्त के साथ साथ इसका सबसे बड़ा दुश्मन आयशा बन गई थी, जो अनाबिया के नायाब से ज्यादा करीब थी। और जब नायाब ने अनाबिया को आयशा से दूर रहने का कहा तो अनाबिया चिढ़ गई। इसने नायाब से भी बात कर बंद कर दी, जो नायाब से बर्दाश्त ना हुआ और इसे मनाने के घर से वो इसके घर आई। अनाबिया मान भी गई और तभी मौका देकर नायाब ने इसे अपने घर आने की दावत दी। अनाबिया ने मना भी किया, पर नायाब के बहुत इसरार पर इसे नायाब की बात माननी पड़ी। जिस दिन वो नायाब के घर गई इस दिन इसे नायाब की असलियत मालूम हो गई थी। वो एक लेस्बियन है। अनाबिया ने ये जानने में और इसकी हरकतों की वजह से इससे बात करना बंद कर दी थी। नायाब ने इससे मनाना चाहा, पर जब अनाबिया ना मानी तो वो धमकियों पर उतर आई। वो अपने भाई को कह के इसे उठवा लेगी। इसका भाई अनाबिया के घर आके सब बता देगा। अनाबिया भी एक लेस्बियन है। ये सब सुनकर अनाबिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो नायाब से दूर रहना चाहती थी, पर इसकी धमकियों से डरती वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। और नायाब का इसरार था कि अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहती है तो अनाबिया इसके भाई से शादी कर ले, ताकि वो फिर आज़ादी के साथ रह सके और अनाबिया अपना घर छोड़कर इसके साथ किसी दूसरे मुल्क चले जहां वो दोनों शादी करके साथ रह सके। अनाबिया को इस बात से घिन आई थी। वो कैसे ये सब कह सकती है। अनाबिया ने इसे साफ इनकार कर दिया कि वो अब नहीं आपकी कोई बकवास नहीं सुनेगी, और इसलिए इसने आयशा को सब कुछ बताने और इस मसले का हल निकालने के बारे में फैसला किया था। और आज जब आयशा को सब कुछ पता चला तो इसका दिमाग खुद ही माउफ हो गया। आयशा को जब खिड़की के सामने खड़े होकर भी सुकून न आया तो वो दोबारा बेड पे आकर दराज हो गई। इसने सब कुछ दिमाग से निकाल कर सोने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। इसकी जब आंख खुली तो इस वक्त असर गहरी हो रही थी। इसके पहलू में रखा इसका मोबाइल बार बार बज रहा था। इसके खुमार आलूदा निगाहों से मोबाइल की स्क्रीन को देखा, जिस पर एक गैर नंबर जगमगा रहा था, जिसे इसने बेदिली से ओके किया। और वो जानती थी ये शहीर मलिक ही होगा, पर दूसरी जानिब से आने वाली आवाज़ भराई हुई थी। गला फटा फटा सा लग रहा था, जैसे बहुत चीख चीख कर होने के बाद बोलता है। बिल्कुल वैसा ही। आयशा तेजी से सीधी हुई। आयशा, मैं नाबिया हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ। मैं मैं नायाब के घर पे हूँ। इसका भाई मुझे यहाँ ज़बरदस्ती ले आया है।
मैं जब यूनि से निकली तो आधे रास्ते में इसने टैक्सी रुकवा ली और बंदूक दिखाकर मुझे यहाँ ले आया। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कह रहे अगर मैंने इनकी बात न मानी तो ये ज़ीशान को मार देंगे। ये मुझे ज़बरदस्ती किसी दूसरे मुल्क भेज रहे हैं। मुझे बचा लो आयशा। अनाबिया, क्या कह रही हो तुम? इसे जैसे अपने कानों पर ही यकीन ना आया। आयशा प्लीज़ सवाल मत करो, मुझे आकर बचा लो, वरना ये लोग मुझे मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। मुझे बचा लो, बहुत मुश्किल में हूँ। नायाब के नंबर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, प्लीज़ आ जाओ। देखो किसी को मत बताना वरना मेरी बहुत बदनामी होगी। आयशा बेड से खड़ी हो गई। दूसरी जानिब अनाबिया फूट फूट कर रो रही थी और अभी आयशा कुछ कहती कि कॉल कट गई। अ, अनाबिया। आयशा ने दोबारा इसी नंबर पर कॉल की। अब फोन बंद था। इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद इसने पर्स और अपना मोबाइल उठाया और कमरे से निकल गई। जब वो लाउंज अबूर कर रही थी तो इसने अपनी अम्मी को बस इतना कहा कि वो अनाबिया की तरफ जा रही है। इसने ये नहीं बताया कि वो किस मकसद के लिए जा रही है। अम्मी पीछे से कुछ बोली थी पर इसने अनसुनी की और घर से निकल गई। वो जब घर से निकलकर सड़क पर आकर टैक्सी में बैठी तो सड़क के पार खड़ा गार्ड, जो हर वक्त आयशा की खबर दस्तगीर और शहीद को देता था, इसने फोन निकालकर दस्तगीर को कॉल की। सर, वो मैडम अभी घर से निकल के एक टैक्सी में बैठ गई है। वो चेहरे पे बहुत ही परेशान लग रही थी। दूसरी जानिब शहर के कैबिन के बाहर खड़े दस्तगीर की भवें सुकड़ी। इनके घर में तो सब ठीक है ना? जी सर, घर में तो सब ठीक है पर वो परेशान लग रही थी। दस्तगीर ने इसे फौरन कहा, तुम इनके पीछे जाओ, मैं बॉस को खबर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। गार्ड ने सर हिलाकर फोन बंद कर दिया और दूसरी टैक्सी में बैठकर इसने आयशा का पीछा करना शुरू कर दिया। शहीद अपने कैबिन में बैठा कुछ फाइल्स को मेज पर फैलाए इन्हें देख रहा था। तभी दस्तक पर सर उठाकर ऊपर देखा तो दस्तगीर अंदर दाखिल हुआ। शहीद की नजरें सवालिया थी। माजरत बॉस, आपको तंग किया, पर वो रियाज की कॉल आई थी। वो कह रहा था मैडम साहब परेशानी से टैक्सी में बैठ गए, कहीं जा रही थी। मैंने इसे इनका पीछा करने भेजा है। अगर आप कहे तो मैं भी जाकर देखूं कि मामला क्या है। शहर की आंखों में पुतलियां सुकड़ गई। इसने फाइल जमा करके एक तरफ रखी और कोहनियों तक मुड़ी सफेद शर्ट को हसीनों के कफ खोलकर इन्हें दुरुस्त करता हुआ खड़ा होकर बोला, मुझे इस लड़की से कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं है। बेवकूफ सी है। तुम रियाज से कहो इस पर नजर रखे। अगर मसला ज्यादा हुआ तो मैं खुद इस मसले को देखूंगा। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन सी परेशानी में है जिसने मेरी आयश को परेशान किया है। दस्तगीर ने सर हिलाया और मोबाइल निकालकर कैबिन से निकल गया। शहीरा सीने सीधी करके दोबारा पावर चेयर पर बैठ गया था। इसका दिमाग आयश के साथ जुड़ गया था। अब इससे काम नहीं होना था। वो जब टैक्सी से उतरी इस वक्त रात कतरा कतरा शहर पर गिरने लगी थी। इसके चेहरे पर इस्तराब था, परेशानी थी। इसने मोबाइल निकालकर दोबारा इसी नंबर पर कॉल की पर नंबर बंद था। इसने नायाब के घर का एक बार अनाबिया से ही बातों बातों में बताया था और इसे रास्ता याद भी हो गया था। वो अंदाजे से अब चलने लगी थी। ये एक सुनसान इलाका था जहाँ बड़े बड़े बंगलेनुमा मकान खामोश दिखाई देते थे। हर तरफ मगरिब की तैरगी मौजूद थी। वो अतराफ में देखती चल रही थी। कुछ कदम उठाने के बाद वो सफेद बंगले के सामने रुक गई जिसका गेट खुला हुआ था। इसे न जाने क्यों डर सा लगा अंदर जाते हुए। इसने सोचा कि वो पुलिस को कॉल करे, पर अनाबिया की बात याद आई। पर इसने ये ख्याल दिल से निकाला और अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिया। वो बंगला भी बाकी बंगलों की तरह खामोश और वीरान था। आयशा के वजूद में लर्जिश होने लगी। इसने अपने कांधे से ढलते दुपट्टे को ठीक किया और बंगले के अंदर दरवाजे के सामने रुक गई। वो भी खुला हुआ था, जैसे इसी का मुंतजिर हो। आयशा का दिल खौफ में मुब्तला हुआ। पर पर दोस्ती हमसे क्या नहीं करवा लेती। ये हमें एक अनजान शख्स के लिए झुकना सिखाती है। ये हमारी इस शख्स के सामने अना तक खत्म कर देती है। मोहब्बत से ज़्यादा अनमोल रिश्ता दोस्ती होता है और दोस्ती भी वही कामयाब होती है जहाँ लोग एक दूसरे को समझे और माफ़ करने का ज़र्फ रखते हो। आयशा की दोस्ती भी अनाबिया के लिए कुछ ऐसी ही थी। तभी वो अपनी परवाह किए बगैर इसकी मदद को आ गई थी। वो गार्ड इन्हीं बंगलों के दरमियान आकर टैक्सी से उतरा और इसके चेहरे पर यहाँ उतरते ही नापसंदगी फैल गई थी। वो इस इलाके में रहने वाले लोगों को अच्छे से जानता था। इसने मोबाइल निकाला। आयशा ने गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और अंदर दाखिल हो गई। फहरान पड़े लाउंज से यूं लगता था जैसे इस बंगले में कोई मौजूद नहीं है। इसने इधर उधर देखा और निगाह खाली लौटी। इसने अभी दरवाजे देखने के लिए लब खोले ही थे कि अगम में चिड़चिड़ाहट की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी और इसके चेहरे के रंग उड़ गए। इसके सामने एक लंबे कद वाला शख्स खड़ा था जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसकी मुस्कान से ही कमीनगी दिखाई देती थी। इसकी नजरों ने बेहयाई साफ झलकती थी। नीले रंग की कमीज शलवार में मलबूस शख्स से घुंघराले बाल कांधों से भी नीचे गिरते थे। गिरेबान के सारे बटन खुले हुए थे जहां से इसकी बहुत सारी जंजीरें दिखाई देती थी। इससे दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिलाकर इन्हें चटखाया। वेलकम। वो आयशा की जानिब कदम उठाने लगा था कि आयशा बेसाख्ता पीछे हुई। वही रुक जाओ। आयशा ने अपनी हालत पर काबू पाते हुए गुस्से से उंगली उठाकर कहा। तंजीम वही रुक गया। ले मैडम, और कोई हुक्म?
इसने सीने पर हाथ बांधकर दांत निकाल कर पूछा। आयशा ने इसे तनव्वुर से देखा। अनाबिया कहाँ है? इसके सवाल पर तंजीम हैरान हुआ। क्या वो इधर है? इसे ये सवाल सर उठाकर नजरें ऊपर लाउंज के चारों तरफ घुमाई बनी बालकनी को देखकर कहा। आयशा की आंखें छोटी हुई, वो उलझी हुई थी। इसने गर्दन तिरछी करके तंजीम की नजरों की सिम देखा तो इसे बालकनी में फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर लिए खड़ी नायाब नजर आई, जो इसे अपनी जानिब देखते ही बोली, अरे आयशा तुम यहाँ? इसने अचंभे से पूछा। तुम्हें किसने कहा अनाबिया यहाँ है? और इस सवाल पे आयशा को खश आया। कार्ड फोन पे दस्तगीर को जगह का बता रहा था और दस्तगीर को ताज्जुब हुआ। वो इधर क्या करने गई है? इसने रियाज से हैरत से पूछा। रियाज ने शाने झुकाए। पता नहीं सर, वो तंजीम के घर में दाखिल हुई है। और इस बात पे दस्तगीर की आंखें फैल गई। तंजीम के? इसके लहजे में बेयकीनी थी। आयशा ने थूक निकला। जरूर वो दोनों बहन भाई इसे भटका रहे हैं। आयशा ने दिल में सोचा था, मेरे साथ बकवास करने की जरूरत नहीं है। मुझे जल्दी बताओ नाबिया कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। वो इश्तिआल से बोली थी। इसके अगम में खड़ा तंजीम इसकी बात पर खुल खिलाया और हंसा। आयशा इसकी तरफ मुड़ी। नयाबी एक अदा से चलती हुई इसे सीढ़ियां उतरने लगी। और तुम क्या कर लोगी अगर हमने अनाबिया का नाम बताया तो? वो महजूज नजरों से देखता हुआ पूछ रहा था। आयशा का पल पल दिल डूबने लगा था। वो बार बार बंद दरवाजे को भी देख रही थी। इसने अपना मोबाइल मजबूती से पकड़ रखा था। मैं इस बात में नयाब ने मुकम्मल होने ही न दिया और फौरन इसके सामने आकर बोली, वैसे तुम हमारी छोड़ो, ये सोचो कि तुम जो अकेली यहाँ आ गई हो, अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। नयाब इसके सामने शांत चेहरे से सीने पर बाजू लपेटे खड़ी थी। तुम मेरे मुंह मत लगो, मुझे अनाबिया का बताओ। आयशा चिल्लाई। नयाब ने दोनों हाथ उठाए। चीखो मत, बता देती हूँ। तंजीम भी इसके पहलू में आकर खड़ा हो गया। वो अपने घर में है, वो यहाँ नहीं है। आयशा की भवें खुद ही ऊपर उठ गई। चेहरे पर तंजिया मुस्कान थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन कर लूंगी? नयाब और तंजीम हंसते। तुम ठीक कह रही हो, इससे शाम करना आसान नहीं है, बहुत तेज बनती है ये अपने आप में। तंजीम ने नयाब के कंधे पर दोस्ताना हाथ रखकर कहा। नयाब ने इसे देखकर सर हिलाया, फिर आयशा की तरफ चेहरा किया। पर तुम्हें यह देखकर जरूर यकीन आ जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ। इसने अपने भाई के सामने हाथ फैलाया। तंजीम ने फौरन इसके हाथ पर मोबाइल रख दिया। मोबाइल की स्क्रीन पर चंद उंगलियां चलाने के बाद नायाब ने मोबाइल आयशा के सामने किया। ये देखकर तुम्हें जरूर चक्कर आने लगेंगे। और वो सच कह रही थी। जब आयशा ने स्क्रीन को देखा तो दहल गई। वहां नायाब ही मौजूद थी, जो आवाज को बदलकर बात कर रही थी। इसके चेहरे पर अदाकारी थी। आयशा का सर गोल गोल घूमने लगा। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, मुझे पता था तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं आएगा। इसने रुककर अपनी बात में तौक़ुफ़ दिया, फिर चेहरे पर मसनूई परेशानी लाकर बोली, चक्कर तो नहीं आ रहे आयशा? नायाब ने मोबाइल सामने से हटाया तो वो हंस दी। भाई, इसके तो रंग ही उड़ गए। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में गोया हुई। आयशा के गले में कांटे उग गए थे। इसने करीब पड़े सोफे के सहारे के घर से थामा। वो दोनों बहन भाई इसकी हालत पर हंस रहे थे। इनके कहकों के साथ एक और आवाज भी थी, जो अब आयशा के जहन में गर्दिश करी थी। और वो आवाज थी वो फोन कॉल वाली लड़की की आवाज। हमने तुम्हें मौत दिखाकर बुखार पर राजी किया है, तुम अब फंस गई हो। तुम्हें होश से काम लेना चाहिए था। नायाब की बात वो सुन रही थी, पर इसकी आंखों के सामने हर चीज घूम गई थी। इसकी गिरफ्त अपने मोबाइल पे इतनी ही मजबूत थी। इसने अपने मोबाइल को सामने किया। दस्तगीर ने रियाज को मजीद कहा, तुम वही रुको और कोई मसला ना होने पाए, मैं बॉस को खबर देता हूँ। हुजरत में कॉल काटकर शहीद के पास पहुंचा, जो अपने पालतू कुत्ते के साथ लाउंज में मौजूद था। बॉस। इसने शहीद के सामने आकर इसे पुकारा तो शहीद ने नजरें उठाकर इसे देखा। बॉस, वो मैडम इस वक्त तंजीम के बंगले में है। तंजीम अच्छा आदमी नहीं है, एक नंबर का कमीना इंसान है। इसकी बात पे शहीद की भवें सुकड़ी। दस्तगीर अभी अभी बोल रहा था, बॉस मुझे यकीन है मसला ज्यादा है, अब कहीं तो मैं चला जाऊं। शहीद इस वक्त जीन्स और सफेद स्लीव शर्ट में मलबूस था। शर्ट का गला गहरा था, जिससे इसके गले की जंजीरें साफ दिखाई देती थी। बाल माथे पर बिखरे, नीली आंखें स्पॉट थी। वो हल्की दाढ़ी मूंछों वाले चेहरे पर हल्की सी भरमी थी। मैं भी चलता हूँ, तुम गाड़ी निकालो, मैं आयशा और इस तंजीम से खुद मिलूंगा। दस्तगीर ने सर हिलाया और बाहर निकल गया। शहीद ने अपना मोबाइल उठाया और दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मैक्सी पीछे अकेला ही बैठा रह गया था।
आशा ने मोबाइल को सामने करती थी जिसे दिमाग चलाए और अभी इससे कॉल करे। वो अभी कुछ सोचती, नायाब ने आगे बढ़कर इसके हाथ से मोबाइल छीनना शुरू कर दिया। आशा की गिरफ्त मोबाइल पर मजबूत थी, इसलिए वो छीन ना सकी। तो तंजीम ने आगे बढ़कर आयशा का हाथ पकड़ा और बेदर्दी से इसके हाथ से मोबाइल लेकर जमीन पर दे मारा। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं रहेगी। इसने आयशा की कलाई पकड़कर इसके कमर के पीछे की और आयशा के लबों से बेसख्त सिसकारी निकली थी। नायाब इसे देखकर बोली, क्योंकि हम तुम्हारी इस जिंदगी से आजाद करे हैं। इसने आगे बढ़कर आयशा का मुंह दबोचा। तुम आओगी मेरे या नाबिया के बीच में? तुम, वो पागलों की तरह इसका मुंह दबोच कर बोल रही थी और आयशा की आंखें पानियों से भर गई। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम नायाब को रोक लोगी? तुम में इतनी हिम्मत है? इसने आयशा को एक झटके से छोड़ा। बल्कि तुम्हारी इतनी औकात है? आयशा अपना हाथ तंजीम से छुड़वाना चाहती थी, हर इसकी सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। मेरा हाथ छोड़ो, वो चिल्लाई थी। इसका गला रन गया था। तंजीम ने ताबेदारी से इसका हाथ छोड़ दिया। अब बताओ क्या करोगी? वो हाथ छोड़कर सामने आ गया। आयशा का दिमाग माउफ होने लगा था। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसके औस्तान तब खता हुए जब तंजीम ने पिस्टल निकाला। मेरी बहन ने आज तक जो भी चाहा है इससे मिला है, और कोई इसकी खुशी के दरमियान आए मुझे पसंद नहीं। मैं इस रुकावट को खत्म कर देता हूँ। इसे पिस्टल निकालकर आयशा पर ताना। कलमा पढ़ लो, जिगर पर उंगली रखकर वो बोला था। आयशा ने आंखें मीच ली। इसकी जुबान तक हिलना बंद हो गई थी। वो पूरी की पूरी कांप रही थी। टांगों में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो भाग ही जाए। नया इसे नफरत से देख रही थी। तंजीम अभी ट्रिगर दबाता है कि दरवाजा धड़म से खुला और वो बौखलाकर पलटा। दरवाजा खुलते ही तेज सफेद रोशनी अंदर दाखिल हुई थी, जो शायद गाड़ी की हेडलाइट्स की थी। दरवाजे इतने बुरे तरीके से खुला था कि वो दीवारों से टकराए और गिर्द उड़ने लगी थी, जो सफेद रोशनी में धुएं के मरगोलों जैसी लगती थी। आयशा ने चौंक कर आंखें खोली और सामने देखा। सामने खुले दरवाजे से पहले दो गार्ड्स अंदर दाखिल हुए, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। फिर दस्तगीर हाथ में पिस्टल थामे अंदर आया था और वो आकर एक तरफ खड़ा हो गया। आयशा को अपनी आंखों पर यकीन न आया। इसे झटका तब लगा जब इस धुएं और सफेद रोशनी में एक और साया बना। फिर एक शख्स तोकीर और बेनियाजी से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ जीन्स की पैंट की जेबों में थे। बड़े सुकून से चलता अंदर दाखिल हो गया था। इसके चेहरे से जो धूल का बादल छटा तो शहीन ने एक मुस्कुराती नजर अशरफ पे डालकर पलक झपकी, जैसे कहता हो, परेशान हो मत, मैं आ गया हूँ। फिर इसकी आंखों के तासुरात बदलने लगे। इसने सख्त भरम नजरों से उड़े हुए रंगों वाले चेहरे के साथ हाथ में पिस्टल लिए खड़े तंजीम और करीब खड़ी नायाब को देखा। तुम्हें पता है, मुझे नहीं पसंद कोई मेरी आयश को परेशान करे। मैं भी इसे खत्म कर देता हूँ। अब दम है तो इसे हाथ पिला कर दिखाओ, फिर तुम भी देखना, तुम कुछ देखने लायक नहीं बचोगे। वो कदम कदम चलता तंजीम के मुकाबिल आ गया था। तंजीम ने एक नजर अपने चारों तरफ देखा। नायाब इसके करीब हुई। भाई, वो अब डर गई थी। तंजीम फिर बगैर तामल पलटा। कोहनी से पकड़कर आयशा को अपनी तरफ खींचकर इसके माथे पर पिस्टल रखा। मैं इसे जान से मार दूंगा अगर तुमने मेरी या मेरी बहन को हाथ लगाया तो। आयशा की जान निकल गई। इसे फटी आंखों से माथे पर पिस्टल रखे देखा। शहर के लब भीज गए थे। इसके चेहरे पर नापसंदगी फैल गई। पुराने डायलॉग्स, इससे सर नाम हिलाया। मुझे पसंद नहीं है ये पुरानी फिल्मों के घिसे पिटे जुमले, कुछ नया बोलो। वो बेजार सा लगने लगा था। आयशा ने इसे बेयकीनी से देखा। मतलब इसकी जान पर बनी हुई है और शहीर मलिक को कुछ नया सुनना है? या अल्लाह, ये मुझे यहाँ बचाने आए हैं या नए तरीके से मरवाने? आयशा ने कम गुस्से से सोचा। तंजीम के हाथ शहीर की शांत लहजे से कांपने लगे थे। रौब सा रौब था जो हर तरफ फैलने लगा था। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे मार दूंगा। शहीर ने गर्दन तिरछी करके दस्तगीर को देखा। तुम इसकी बहन को मार दो। दस्तगीर बिजली की तरह आगे बढ़ा और नायाब के सर पर पिस्टल रख दिया। तंजीम की जान निकल गई। इसे बेसाख्ता आयशा को छोड़ा। नायाब, वो चिल्लाया था। नायाब रोने लगी थी, पर शहीर मलिक को दोनों से ही कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब और नजरें आयशा पर थी। वो कदम कदम चलता इसके सामने और इसने हाथ उठाया और आयशा का गाल छुआ। आयश, इसका ये सरगोशी भरा अंदाज, इसकी हथेली की तपिश आयशा ने एक लम्हे को आंखें मूंद ली। वो नरमी से इसके गाल पर मौजूद नमी को साफ कर रहा था। जब इसने नमी साफ करके अपना हाथ हटाया तो आयशा ने आंखें खोलकर इन नीली आंखों वाले बेनियाज शख्स को देखा, जो अब नाराज नजरों से आयशा को देख रहा था। तुमने कहा था तुम सुपरमैन नहीं हो।
پھر یہاں اکیلی کیوں آ گئی؟ گندی، تمہاری خبر میں بعد میں لوں گا، پہلے میں اس کی طبیعت صاف کر لوں۔ وہ ایڈی کے بل گھما اور اشارے سے ایک گارڈ کو عائشہ کی طرف بھیجا۔ اوکے گائز، آج کی ایپیسوڈ کے لیے اتنا، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ پلیز آپ لوگ ہماری محنت کا پھل دیا کریں، لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ فی امان اللہ۔